everyone, hi, this is Anjali and welcome to my channel. It's Yog Essence Plus. तो guys, this is my first video ever on the YouTube channel. थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ सेम टाइम पे. And this video is all about for all people who all are new to yoga. Because there are few things you must to know before starting your yoga practice. There are lots of questions comes in mind when we come on the mat. So before coming on all these points, I wanna brief you like what is yoga actually. Yoga actually, yes, you heard right, it's yoga, it's not yoga. Actually, we create a word like yoga. There is no such word called yoga. योग एक वर्ड है, योगा कोई वर्ड ही नहीं है. योगा इज नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, योग इज अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. लेकिन हमने जैसे शिव को शिवा बना दिया है, हमने राम को रामा बना दिया है, हमने अर्जुन को अर्जुना, कृष्ण को कृष्णा, ऐसे ही हमने योग को भी योगा बना दिया है. बट योगा इज नॉट अ राइट प्रोनाउंसिएशन. राइट प्रोनाउंसिएशन इज योग. द राइट वर्ड इज योग, which is derived from the Sanskrit root which is called युज. ये युज धातु से मिलकर बना है. इसका मतलब होता है यूनियन. यूनियन और किस चीज़ से जुड़ना, टू कनेक्ट योर सेल्फ विद अनदर थिंग. Like if we practice all yoga practices, then it can lead us to like union of individual consciousness to connect with the union of we can say it's universal consciousness, right? Yoga actually it's like a divine, it's a union in which you try to uplift yourself to connect with the higher divine, to connect with the higher energies. But unfortunately nowadays for many people that yoga is doing a set of asanas. According to them yoga मतलब आसन्स करना. But ये ट्रू नहीं है. Yoga is not confined only to the asanas. Actually asana is very important, is very important practice. Like we can say yoga is the yoga sadhana, the result of yoga sadhana, which is consist of several practices, and asana is one of them. Or we can say asana is a prerequisite to achieve all higher practices of yoga like pranayama, meditation and samadhi. तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आसन्स को कर रहे हैं तो हम सोच के बैठ जाएं कि हम सिर्फ योग कर रहे हैं. बहुत सारी प्रैक्टिस लाइक प्राणायाम है, मुद्रा है, बंध है, प्रत्याहार है, ध्यान है. तो बहुत सारी प्रैक्टिस इन्वॉल्व बन के योग बनता है. दैट्स वाई योग वर्क्स ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सन, लाइक इट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. लेकिन आजकल लोगों ने सिर्फ इसको आसन्स तक लिमिटेड कर दिया है. Actually this video is my introductory video, or this is basically for those who all are new to yoga. Actually if you are new to yoga then you should know few things. There are lots of questions comes in mind actually. जब मैं क्लास देती हूँ तो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे से बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि कब करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए. सो द क्वेश्चंस विच कम्स इन माइंड लाइक वेयर टू डू इट, what's the best time to do it, what's the best time to do yoga and how to do it, and what we should eat before yoga and what we should not eat before yoga. So there are some do's and don'ts जो आपको ध्यान रखने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, कब करना चाहिए, क्या सही टाइम है योग प्रैक्टिस के लिए. तो द बेस्ट टाइम फॉर योग प्रैक्टिस इज द मॉर्निंग आवर्स. आपको मॉर्निंग में करना चाहिए एट द एम्प्टी स्टमक, बिकॉज मॉर्निंग आवर्स जो द बेस्ट टाइम है. जब आप नेचर कॉल्स अपनी कर चुके हैं उसके बाद आप योग मैट पे आइए. उसके बाद आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं खाली पेट पे. You can actually, it is advisable also, you can continue your practice in the evening time at the sunset time. लेकिन digestion takes time. It takes minimum 4 hours to digest any kind of food. So there should be a gap between 3 to 4 hours, minimum 3 to 4 hours between your practice and your food. So morning time is much preferable than evening time. और अगर मैं शास्त्रों की बात करूँ, ट्रेडिशन की बात करूँ, अपने एंशियंट वैदिक टेक्स्ट की बात करूँ, सो ब्रह्म मुहूर्त इज द आइडियल टाइम टू गो फॉर द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एंड इट्स अ good time for attaining like supreme knowledge, for the Brahma Gyan as well as for the eternal happiness. And in the early morning the environment is very calm, it's very relaxation stage as compared to the whole day, and energy at its peak level. आपकी जो energies होती हैं बहुत peak level पर होती हैं, एंड योर प्राण जो आपका जिसको वाइटल लाइफ फोर्स बोलते हो, उस
का फ्लो और एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छे से होता है इस टाइम पर। क्या नहीं करना है आपको, सबसे बड़ी चीज़ इज़ नॉट एक्चुअली मैं एडवाइस नहीं करूँगी कि आप इसको आफ्टरनून में करें। द रीज़न इज़ मोस्ट प्रोबेबली द फूड एक रीज़न है, क्योंकि अगर आप इसको आफ्टरनून में करते हैं, क्योंकि आफ्टरनून इज़ अ गुड टाइम फॉर द डाइजेशन, सो लेट्स कीप इट फॉर दैट ओनली। अगर आप इसको आफ्टरनून में करते हैं, आपने खाना खाया हुआ है और आप उसके बाद इसको करते हैं, सो माइट बी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि वो आपके डाइजेशन प्रोसेस को इम्पेयर कर दे, आपके मतलब इंडाइजेशन आपको होना स्टार्ट हो जाए, एसिडिटी होना स्टार्ट हो जाए, और इट कैन लीड अप टू द नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीजेस। सो जस्ट अवॉइड ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ध्यान रखें कि आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में ही, जब आप 3 to 4 आवर्स का गैप हो जाए तो उसके बाद ही कंटिन्यू करें। नाउ सेकेंड क्वेश्चन कम्स, दैट इज वेयर वी शुड डू इट, कहाँ पे करना चाहिए। हमेशा योग प्रैक्टिस आपको एक खुले एरिया में करना चाहिए, मतलब द एरिया शुड बी एयर, should be clean, should be fresh, and you can preferably go to the park. You can, if you are not comfortable to go to the park like in this COVID-19, you can go to your terrace, you can go to your roof. Even you can practice in your room, but the room should be ventilated होना चाहिए। रूम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके डोर, आपके विंडो सब बंद है। देयर शुड बी एम्पल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए रिकमेंड करते हैं मोस्टली कि हम पार्क में करें, हम टेरेस पे करें, जहाँ पे थोड़ी सी खुली हवा हो, जहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन अच्छे से मिल सके आपको। आपके लंग्स के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, ऑक्सीजन आपको मिलेगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा खुले एनवायरनमेंट में कीजिए। नाउ दूसरी चीज़ है कि क्या नहीं करना है आपको। कभी भी जब आप योग प्रैक्टिस करते हैं, ट्राई टू अवॉइड योर प्रैक्टिस इन एसी रूम। अगर आपके रूम में एसी चल रहा है, आपके रूम में फास्ट फैन चल रहा है, आपके रूम में कूलर चल रहा है, तो उस रूम में प्रैक्टिस करने से अपने आप को रोकिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब एसी चलता है तो आपका जो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर और आपके जो रूम का टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट कर जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कभी भी ज़्यादा जहाँ पे हवा चल रही हो, जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा हो, जहाँ पे एसी हो, कूलर चल रहा हो, वहाँ पे प्रैक्टिस को ना करें। सो एज आई सेड कि आप थोड़ा अपने आप पार्क में थोड़ा सा अपने रूम को खोल के थोड़ा सा अपने, जैसे कि टेरेस पे, रूफ पे कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है कैसे करना चाहिए। बेसिकली जब भी मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कराती हूँ, हमेशा मैं स्टार्ट कराती हूँ मंत्र चैंटिंग से। मैं प्रेयर से स्टार्ट कराती हूँ और मैं मंत्र चैंटिंग से स्टार्ट कराती हूँ। तो ऑलवेज स्टार्ट एंड योर प्रैक्टिस विद द प्रेयर एंड द मंत्र चैंटिंग। बेसिकली होता है क्या है, हमारे माइंड में बहुत सारी थॉट्स चलती रहती हैं, बहुत सारी। हाँ, जैसे कि हम उठे, हमारे माइंड में थॉट चल रही हैं कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, कल ये हुआ था, बहुत सारी थॉट चल रही है। हमारे माइंड का सबसे फेवरेट जो हमारे माइंड का है वो है सोचना, और हम उसको करने देते हैं। तो इन थॉट को रोकने के लिए हमें थोड़ा सा प्रेयर करना चाहिए, सो दैट वी कैन काम आवर माइंड, वी कैन काम आवर सेल्फ, राइट। थोड़ा सा काम, थोड़ा सूदिंग, थोड़ा रिलैक्स करेंगे अपने माइंड को, अपनी बॉडी को। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू ब्रिंग यू एट द प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आना है। क्योंकि जब भी आप कोई प्रैक्टिस करते हैं, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जस्ट ट्राई टू गिव ऑनर टू दैट थिंग। आप कुछ भी कर रहे हैं उसको ऑनर देना है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसको यू जस्ट ट्राई टू गिव ऑनर टू दैट थिंग, ठीक है। तभी आप अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट पे लेकर आ सकते हैं। बिकॉज योगा इज समथिंग in which you need to bring your awareness whatever you are doing, whether you are doing pranayama, whether you are doing asana, whether you are doing any बंद मुद्रा, आपको अपनी अवेयरनेस को लेके आना है। और अवेयरनेस को लेके आने के लिए आपका दिमाग शांत होना बहुत ज़रूरी है। आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर सकते हैं, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, क्योंकि योगा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे बहुत अच्छे से फोकस करना होता है। सो प्रेयर बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा स्टार्ट करें अपनी प्रैक्टिस को मंत्र से और प्रेयर से, और हमेशा एंड करें। मैं तो ऐसा ही करती हूँ अपनी क्लास में, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकल इशू, then please seek expert advice. Just go for the expert advice. क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा इशू हो जिसमें आपको डॉक्टर ने मना किया हो कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप करते हैं तो माइट बी कि वो आपके लिए, मे बी आपके लिए वो थोड़ा सा हार्मफुल हो।
So that's why I'm saying if you are suffering from any medical issue, then please go for the expert advice first. Then you can come then you can go for the yoga practice. And one thing is more that whenever you are doing your practice, try to avoid the accessories. अपनी जितनी भी accessories हैं आपकी, चाहे वो आपकी वॉच है, चाहे आपकी वो बैंगल्स हैं, चाहे वो आपकी रिंग है, उनको थोड़ा सा अलग रखिए। अभी अपनी प्रैक्टिस करते समय उनको आप बाद में पहन सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि कोई भी एक्सेसरीज आप ना पहने जब आप प्रैक्टिस करें। और जब भी आपको फीवर हो, जब आप थोड़ा सा लो फील करें, थोड़ा इन द सेंस कि आपकी बॉडी सपोर्ट ना करें आपको, वेन एवर यू आर फीलिंग वेरी लो, वेन एवर लाइक यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर और हाई टेम्परेचर, ट्राई टू अवॉइड द प्रैक्टिस। उस समय आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स वी शुड वियर एट द टाइम ऑफ द प्रैक्टिस। हमें हमेशा कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने चाहिए, हमेशा लूज और कंफर्टेबल, सो दैट वी कैन ब्रीथ वेरी इजीली, वेरी प्रॉपरली। ठीक, ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग कई बार योग पैंट्स बहुत टाइट पहन लेते हैं तो उसमें ब्रीथ करने में थोड़ा सा इशू होता है। थोड़ा सा इस तरीके से कि एनर्जी का फ्लो, जो प्राण है आपके शरीर में, जिसको वाइटल लाइफ फोर्स कहा जाता है, प्राण का और ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से हो आपकी बॉडी में, इस तरीके से आपको क्लोथ्स बहुत लूज, थोड़ा सा कंफर्टेबल पहनने हैं। ठीक है, क्योंकि आसना ही नहीं है कि जो सिर्फ कंफर्टेबल ही होने चाहिए, आपके क्लोथ्स भी बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, आपका माइंड भी और लाइफ कंफर्टेबल होना चाहिए। नाउ आप कॉटन क्लोथ्स को प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि मैट, ऑलवेज यूज़ योर ओन मैट। आप किसी की और की मैट यूज़ नहीं करनी है। जस्ट ट्राई टू मेंटेन अ हाइजीन, क्योंकि आप उस पर ब्रीथ भी करते हैं, आपकी स्वेटिंग भी होती है, तो स्पेशली ध्यान रखें आप किसी और का मैट यूज़ ना करें या आपका मैट कोई और यूज़ ना करें। सो जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन योर ओन मैट। ठीक है, क्योंकि मैट का भी एक कनेक्शन होता है आपसे। इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर मैट। आपको नहीं पता होता है, लेकिन कुछ वाइब्स होती हैं जो आप कनेक्टेड हो जाते हो उस मैट के साथ में। तो ऑलवेज यूज़ योर ओन मैट। नाउ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है लिसन टू योर बॉडी। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। हमेशा अपनी बॉडी की सुने। आपकी बॉडी के बारे में आपसे ज़्यादा कोई और अच्छे से नहीं जानता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चलें, अपनी बॉडी कैपेसिटी को फॉलो करें। सो जस्ट लिसन टू योर बॉडी। डोंट ओवर स्ट्रेच, डोंट ओवर पुश योर सेल्फ, बिकॉज वी आर हेयर टू रिलीज आवर स्ट्रेस, वी आर हेयर टू गेट रिलैक्स। हम यहाँ पे अपनी बॉडी को और अपने माइंड को प्रेशर देने के लिए नहीं आए हैं। योग हम करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को और अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें। तो कभी भी अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेच ना करें, कभी भी अपनी बॉडी को ओवर पुश ना करें, क्योंकि आप जानते हैं जब आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा करके, तो ऑलरेडी आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एक टाइम पे आके आ जाएगी। आसना इज समथिंग लाइक विच शुड बी अचीव वेरी स्लोली, विच शुड बी मेंटेन फॉर सम टाइम एंड विच शुड बी रिलीज इन द स्लो एंड स्टडी मैनर। ठीक है, तो धीरे धीरे जाना है आसन में, धीरे धीरे आना है वापस। इसी तरीके से प्राणायाम है, धीरे धीरे जाना है, धीरे धीरे वापस आना है। तो कभी भी हरी में ना रहें, कभी भी अपने आप को ज़्यादा पुश ना करें, ज़्यादा स्ट्रेच ना करें। अगर आप अपने आप को ज़्यादा पुश करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए हार्म हो सकता है। ये हो सकता है आपकी मसल टेंस्ड हो जाए, हो सकता है आपके जॉइंट्स इतने फ्लेक्सिबल ना हो, कि मोबिलिटी उनमें इतनी ना हो कि आपके जॉइंट्स में कोई पेन आ जाए, और हो सकता है कि आपके ब्रीदिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाए, आप अनरिलैक्स हो जाए, आपका माइंड रिलैक्स ना हो पाए, स्ट्रेस बढ़ जाए। तो हमें वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है, इंजरी को अवॉइड करना है। सो जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ योर बॉडी कैपेसिटी। डोंट स्ट्रेच, डोंट ओवर स्ट्रेच एंड डोंट ओवर पुश योरसेल्फ। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है कि कितनी देर बाद खाना है और कितनी देर बाद खाना है। यस, यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 20-25 मिनट्स आफ्टर योर प्रैक्टिस। आपको खाना भी और आपको नहाना भी कम से कम 20-25 मिनट या हाफ एन आवर के बाद आप उसी के बाद खा सकते हैं और उसी के बाद आप नहा सकते हैं। इतना गैप तो आप कर सकते हैं। और हाफ एन आवर के बाद में आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। यू आर डूइंग योर प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग टाइम, यू कैन हैव योर फूड आफ्टर हाफ एन आवर, लाइक योर जो भी आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं, ट्राई करें कि हेल्दी चीज़ें खाएं। अगर आप अच्छी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, तभी कोई वर्कआउट, एक्सरसाइज है या फिर जैसे हम योग करते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप कोई भी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपको इतना हेल्प नहीं करेगा। ठीक है,
इट्स नॉट लाइक अ मैजिक, कोई मैजिक नहीं है कि आपने किया और जादू चल गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज यू आर डूइंग फॉर 1 आवर ओनली। जो आप प्रैक्टिस है आप इसको 1 आवर कर रहे हैं, बाकी क्या आप 22-23 आवर्स क्या करते हैं, मेन चीज़ उस पर भी डिपेंड करती है कि बाकी टाइम आप क्या कर रहे हैं। ये तो डिपेंड करता ही करता है, बट बाकी टाइम आप क्या कर रहे हैं, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट फ्यू प्रिकॉशंस एंड फ्यू टिप्स जो आपको लेनी चाहिए योग स्टार्ट करने से पहले। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी आपके सामने। मैं एवरी वेडनेसडे को अपनी वीडियोस को अपलोड करूँगी, जो कि बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही बेनिफिशियल होंगी आपके लिए, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो। इन केस आपको लगा हो, आपको थोड़ी सी वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स टू जॉइन मी। So till then, take care. Bye bye. Thank you so much. Namaste.